Good morning, class. Let us start with our chapter number 7, getting to know the plants, right? As you all know that plants are our biggest friends. क्यों हैं हमारे biggest friends? क्या वो हमको चॉकलेट देते हैं, या हमारे साथ खेलते हैं, या हमें जब मदद चाहिए तो हेल्प में आते हैं? If we find the answer to all these questions, we will find yes, they give us everything, and in return they don't ask anything from us. That is why they are known as our best friend. So go outside and observe all the plants around you. Figure 7.1. Do you see that some plants are small, some are very big, while some are just the patches of green on the soil? Some have green leaves, while some have other reddish ones. Some have huge red flowers, some have tiny blue ones, while some have none. We do see a variety of plants existing all around us, near our homes, in the school ground, on the way to the school, in the parks and the gardens, isn't it? Let us get to know the different parts of any plant. This will help us to understand the difference between plants of different kinds. Now, can you label the stem, branch, root, leaf, flower and fruit of a plant as shown in the figure 7.1? The color the parts of it. See here जो फिगर दिया हुआ है आपको, उसमें आपको फाइंड आउट करना है कि रूट्स कौन से हैं, लीव्स कौन से हैं, फ्लावर्स कौन से हैं. जस्ट लाइक अवर सेल्व्स, हमारे कैसे सर के बाल हैं, आँखें हैं, नाक है, गर्दन है, पेट है, हाथ है, पैर हैं, ये जब हमारे बॉडी पार्ट्स हैं जो अलग अलग फंक्शन करते हैं, राइट. किसी एक बॉडी पार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा तो पूरी बॉडी को प्रॉब्लम होगा. इन द सेम वे रूट्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ब्रांचेस, स्टेम्स, ये सब प्लांट्स के पार्ट्स हैं, और किसी एक पार्ट में कुछ प्रॉब्लम होती है तो सारे प्लांट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है. सो व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स? हम आजू बाजू में देखते हैं तो हमारे बहुत से, कोई बड़े पेड़ हैं, कोई छोटे पेड़ हैं, कोई मीडियम साइज़ के पेड़ हैं हमारे बाजू में. So what are all these different kinds and what are the different parts of the plants? Let us study them. Look closely at the stem and branches of the plants much smaller than you, plants that are about your size and the plants which are much taller than you. Feel their stem and try to bend them gently to see if they are tender or hard. जो हमारे आजू बाजू में plants हैं उसकी branches, leaves, stem को observe करो and try to see of what they are. जो कुछ प्लांट्स हमारी साइज़ से छोटे होंगे, कुछ हमारी ही साइज़ के होंगे और कुछ हमसे बड़े होंगे. और उन सब प्लांट्स के स्टेम को आप देखोगे तो क्या तीनों एक जैसे होंगे? बिल्कुल नहीं, अलग अलग होगी सबकी स्टेम. और उसको ऐसे मोड़ के देखो, क्या वो मुड़ सकती है? अगर मुड़ सकती है तो टूट जाती है, या सिर्फ टूटती नहीं है, बैंड हो जाती है. टेक केयर दैट द स्टेम डज नॉट ब्रेक. यू hug the tall plant to see how thick their stems are. We also need to notice from where the branches grow in some plants, close to the ground or higher up the stem. We will now group all the plants we observed in table 7.1. Some examples are shown here and you can fill the column. Now see the suggestions to fill. Student can work in group of 4 to 5 that a minimum number of plants are harmed or damaged. You may also use the weeds with a soft stem for the activities. Do you know
what weeds are in crop fields, lawns, or in pots. Other some unwanted plants or weeds start growing. Have you seen the farmers removing these weeds from their fields? देखो, जब हम कोई गार्डन में या प्लांट में कोई प्लांट उगाते हैं, राइट, तो जो प्लांट हमने उगाया है वो तो उगेगा ही, साथ साथ दूसरे कोई घास पत्ते जैसे भी उग जाएंगे जो हमने नहीं उगाए थे, राइट। तो जो खाना हम प्लांट को देना चाहते हैं वो उसमें से थोड़ा बहुत खाना ये भी ले लेते हैं, जैसे फर्टिलाइज़र, वाटर, सनलाइट, एयर जो भी होता है वो ये प्लांट भी ले लेते हैं। तो जो हमने प्लांट को उगाया है उसको वो नहीं मिल पाता है भर पेट खाना, तो वो कमज़ोर रह जाता है। तो वो हमने जो प्लांट को उगाया है वो कमज़ोर ना रह जाए, इसके लिए जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं अपने आप उगाते हैं, उसको हम बोलते हैं वीड्स। तो खेत में फार्मर जो होता है वो यही ध्यान रखता है कि कोई अनवांटेड प्लांट्स तो नहीं उगाया, और अगर उगाया है तो उसको काट डालना। So 2 and 3 for many more plants. Based on these characters, most the plants can be classified into 3 categories, that is herbs, shrubs and trees. अभी देखो, प्लांट्स की 3 प्रकार की जाति होती है ना। सभी ग्रीन प्लांट्स ग्रीन कलर के दिखते हैं हमको, सिर्फ 2 और 3 प्लांट ऐसे हैं जिसके लीव्स लाल कलर के होते हैं, बाकी मोस्टली प्लांट्स के लीव्स ग्रीन कलर के होते हैं। और कुछ हमारी साइज़ से छोटे होते हैं, कुछ हमारी साइज़ के होते हैं, कुछ हमसे भी बड़े होते हैं। तो मोटा मोटा अगर हम लोग प्लांट्स को ग्रुप करना चाहें तो हम उसको 3 ग्रुप में बना सकते हैं। दे आर नोन एज हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज़। ठीक है, ये 3 प्रकार के प्लांट होते हैं। प्लांट्स विद द ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कोल्ड हर्ब्स। ग्रीन एंड टेंडर यानी कि सॉफ्ट, जो मुड़ सकती है और थोड़ा ज़्यादा उसको बेंड करेंगे तो टूट भी सकती है। दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस। तो हर्ब्स जो होते हैं उसकी बहुत सारी ब्रांचेस नहीं होती हैं, उनकी हाइट छोटी रहती है हमेशा। सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ द स्टेम। जहाँ पर पेड़ उगा है उसके बेस पार्ट, ज़मीन के बिल्कुल नज़दीक वो स्टेम्स बना लेंगे। द स्टेम इज़ हार्ड बट नॉट वेरी थिक। वो स्टेम हार्ड तो होगी लेकिन बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होगी। सच प्लांट्स आर कॉल्ड द श्रब्स, राइट। एंड सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव ए हार्ड एंड थिक स्टेम। जब आप उसको गले लगाना चाहोगे ना तो पूरा पेड़ तुम्हारी बाहों में भी नहीं आएगा, इतना बड़ा होगा। एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम। द स्टेम हैव ब्रांचेस इन द अपर पार्ट। वो प्लांट के ऊपर कुछ हाइट के बाद जाने के बाद उसकी ब्रांचेस बाहर निकलेगी, राइट। एंड मच अबाउट द ग्राउंड। सच प्लांट्स आर कोल्ड ट्रीज। इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रीज। सो हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज आया समझ में। एक बिल्कुल ग्राउंड लेवल के ही साइज़ के होते हैं, ग्राउंड के बाजू में ही रहते हैं। एक थोड़े से हाइट वाले होते हैं और उसकी ब्रांचेस ज़मीन के आजू बाजू में ही हो जाती है, जबकि हर्ब्स में कोई ब्रांचेस नहीं होगी, राइट। और ट्रीज जो है वो थोड़ा ऊपर जाएगा और फिर उसमें से ब्रांचेस निकलेगी, राइट। Based on the above characteristics, you can now classify the plants listed by you and complete the following table. Now, Paheli wonders what kind of stem the money plant, the beanstalk, and the gourd plants and grapevines have. Do observe some of these plants. How are these different from the herbs, a shrub, or a tree? What do you think? Some of them need support to climb upwards. कुछ plants ऐसे होते हैं जो खुद ब खुद अपनी हाइट नहीं पकड़ सकते, हमें उनको कोई सहारा देना पड़ता है, या रस्सी से या लकड़ी से या किसी और चीज़ से, ताकि वो प्लांट ऊपर ज़मीन से ऊपर हाइट पकड़ सके, राइट। सो दे आर एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर। सी, कुछ प्लांट्स ऊपर चढ़ रहे हैं ना, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स।
So 2-3 shrubs, herbs or creepers growing in your school. Observe the stem. Observe closely the stems of different plants around you. Note down the different structures, part borne by the stem, and compare your observation with that of your friends. What do you find? Stems bear leaves, branches, buds, flowers and fruits. So आप क्या ऑब्जर्व करते हो? प्लांट्स जो है उसके अंदर स्टेम्स के अंदर लीव्स भी होंगे, ब्रांचेस भी होंगे, छोटे छोटे बर्ड्स भी होंगे, फ्लावर्स भी होंगे एंड फ्रूट्स भी होंगे. We would require a glass, a water, a red blue ink and soft stem. Now pour the water to fill 1/3 of the glass, add a few drops of red or blue ink to the water and cut the base of the stem and put it in the glass as shown in the figure. Then observe the setup. Does the color appear in the stem? You will find that the color rises in the stem. If this is kept for a longer period, the color appears in the veins of the leaves also. So how do you think the color reached there? From this activity, we see that the stem helps in upward movement of water. The water and minerals go to the leaves and other parts of the plant to the stem. अभी देखो यहाँ पर what we have done is we have taken one glass. ये ग्लास हमने लिया है, उसके अंदर पानी भरा, पानी के साथ साथ थोड़ा रेड कलर का इंक या ब्लू कलर का जो भी इंक डालना है हम डाल सकते हैं. फिर एक छोटे से प्लांट की स्टेम जैसा डाल देते हैं उसमें और थोड़ा टाइम रेस्ट करने देते हैं. जब हमने स्टेम अंदर डाली थी तब स्टेम का कलर ब्राउन जैसा ही था, राइट, या तो ग्रीन जैसा होगा हल्का हल्का. लेकिन व्हेन वी kept this stem in the water for some time, we observed that this water have started rolling upside. इसके स्टेम के अंदर चढ़ना शुरू हो गया पानी, और ये क्योंकि लाल कलर का है पानी तो हमको स्टेम भी लाल कलर की लगने लग गई. ठीक है. और अगर ज़्यादा एक रात रुक जाते हैं, दूसरे दिन देखते हैं तो हमको क्या दिखता है कि ये जो ऊपर लीव्स है ना, लीव्स उसके अंदर जो छोटी छोटी ट्यूब्स जैसा वेन्स जैसा दिखता है उसके अंदर भी लाल कलर आना शुरू हो गया. मतलब ये पानी ग्लास में से इस स्टेम में गया और इस स्टेम में से होते होते ऊपर का, सबसे ऊपर का जो लीफ होता है ना वहाँ तक पहुँच जाता है, राइट. सो दिस स्टेम हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर from the ground to the topmost part of the plant. Now let us see the leaf. Observe the leaf of some plants around you and draw them in your notebook. Are all the leaves of the same size or the shape and color? How are leaves attached to the plant stem? The part of the leaf by which it is attached to the stem is called the petiole, right? The broad green part of the leaf is called the lamina. And can you identify these parts of leaves in plant around you? Do all the leaves have petioles? हमारे आजू बाजू में जो भी प्लांट्स होते हैं उसको हमें ऑब्जर्व करना है तो हम देखेंगे कि हर एक प्लांट का पत्ता जो है उसका कलर भले ग्रीन है, कोई डार्क होगा, कोई लाइट होगा, कोई मीडियम ग्रीन होगा, सबका साइज़ और शेप अलग अलग होगा. तो कलर अलग है, साइज़ अलग है, शेप अलग है, पतला और मोटा भी अलग अलग होगा. कोई एकदम लीव्स पतले होंगे और कोई एकदम मोटा लीफ होगा. देखो आपने देखा होगा तुलसी का पत्ता सिर्फ इतना होता है ना,
और केले का छिलका, केले का पत्ता इतना बड़ा होता है ना। सो लीफ का जो स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पर वो स्टेम से जुड़ा हुआ होता है, यहाँ पर इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं पीटियोल। अंडरस्टूड। और यहाँ पर जो उसके अंदर का स्ट्रक्चर होता है, राइट, उसको हमारा अलग अलग होता है, उसको हम बोलते हैं लेमिना। सो लेट अस गेट टू नो द लीफ बेटर बाय टेकिंग इट्स इम्प्रेशंस. If you thought that leaves cannot shine, here is an activity which will make you think again. जैसे हम लोग कैसे इंक पैड के ऊपर ऐसे अंगूठे लगा के बुक में निशानी करते हैं, तो हमारी एक साइन जैसा, निशानी जैसा बन जाता है। सबकी अलग अलग फिंगरप्रिंट होती है ना। उसी तरह आप जो भी लीव्स को लोगे और उसको लाइट में या पेपर के ऊपर उसको स्केच बनाने की कोशिश करोगे, तो आपको पता लगेगा कि सभी लीफ जो होते हैं सबकी अलग अलग पैटर्न होती है अंदर, राइट। सो पुट ए लीफ अंडर अ वाइट शीट ऑफ पेपर और ए शीट इन योर नोटबुक. Hold it in place as shown in the figure and hold your pencil tip sideways and rub it on the portion of the paper having the leaf below it. Did you get an impression with some lines in it? Are they similar to those on the leaf? These lines on the leaf are called veins. Do you see a prominent line in the middle of the leaf? This is called the midrib. And the design made by the veins in the leaf is called the leaf venation. If this design is net-like on both the sides of the midrib, the venation is called reticulate. And if the leaves of grass, you might have seen that veins are parallel to one another. This is called the parallel venation, figure 10.b. Now observe the venation in as many as leaves you can without removing them from the plant, and draw the pattern and write down. See here, जब हम प्लांट्स को देखते हैं, राइट, यहाँ पर लीफ के ये जो बीच वाली लाइन जा रही है उसको हम बोलते हैं मिडरिब, ठीक है। और आजू बाजू में जो ये लाइनें जा रही है, राइट, दिस इज़ नॉन एज वेनेशन. अभी स्ट्रक्चर में आप देखोगे तो नेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है ना। देखो यहाँ से यूं नेट जैसा बनता जाता है, और यहाँ पर आप देखोगे तो सब ऊपर एक जैसी लाइनें जा रही है, यहाँ पर कोई नेट जैसा नहीं बन रहा है, राइट। सो दिस इज़ नॉन एज, ये वाला जो है, दिस वन इज़ पैरेलल वेनेशन, और ये जो है 10.a एंड बी लीफ वेनेशन, एक है रेटिकुलेट वेनेशन और दूसरा है पैरेलल वेनेशन. तो हमारे आजू बाजू में जितने सारे लीफ होंगे, जब हम उसको ऑब्ज़र्व करेंगे तब हमें पता चलेगा कि हर एक लीफ जो है उसका वेनेशन अलग अलग होगा. आगे का हम कल पढ़ेंगे. आज के लिए इतना ही. टेक केयर एंड डू स्टडी वेल.